Hello students, in this lecture we will be starting the most important provision from the Constitution of India, which is the fundamental rights. The fundamental rights are given under which part of the Constitution of India? They are given under part 3 of the Constitution of India. And from which country have we derived the idea of having the fundamental rights? We have taken this particular provision from the Constitution of United States of America. Also, the fundamental rights are known as the Magna Carta of the Indian Constitution, because this is the most important and most sacrosanct part of the Constitution of India. The fundamental rights basically curtails down or restricts the powers of the state. The state has been given wide powers under the Constitution of India itself, but the powers of the state are restricted through the means of fundamental rights. The powers of the state extend only to the extent of not infringing the fundamental rights of citizens. Fine. So the state or the legislature as such can make any law on any particular provision, but if the particular law made by the legislature infringes the fundamental rights of the citizens, then it can be held to be unconstitutional by the Supreme Court or the High Court. Fine. So the particular law to be constitutionally valid has to fulfill the requirements of fundamental rights as well. A law cannot as such infringe the fundamental rights. Secondly, the fundamental rights can be claimed by the citizens through the means of judiciary. They are actually justiciable part of the constitution. That is, they can be enforced by the individual citizens against the state through the means of courts. Fine. So if your fundamental right has been infringed by the state, in that case you are free to go to the higher judiciary, be it the High Court or directly to the Supreme Court of India as well. The part 3 and part 4 as well as part 4A of the Constitution of India, that is fundamental rights, directive principles of state policy and fundamental duties, all these 3 parts are very important for the purpose of your judicial services examination as well. Fine. So let's start with part 3 of the Constitution of India, which is fundamental rights. This is part 3 of the Constitution, which provides with the provision of fundamental rights. How many fundamental rights do we have under the Constitution of India? Can you tell me? और ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था उस टाइम कितने फंडामेंटल राइट्स थे? देयर वर टोटल ऑफ 7 फंडामेंटल राइट्स व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनली मेड. ऐसा और अब फिलहाल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ऐसा कौन सा एक फंडामेंटल राइट्स था जिसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है? देयर वाज a fundamental right to property, which was initially a part of fundamental rights under the Constitution of India, but this particular right to property has now been removed from the list of fundamental rights. Now we have only 6 fundamental rights. और ये right to property अब कहाँ पे चला गया है? This has been moved to Article 300A of the Constitution. Fine. So right to property is not a fundamental right but still a constitutional or legal right. अब एक क्वेश्चन उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है? कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो सारे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट्स. बट fundamental rights are only those rights which are given under part 3 of the Constitution. Fine. So although right to property is no more part 3 of the Constitution, but nevertheless it has been placed under the Constitution of India itself under Article 300A of the Constitution. So जो भी rights Constitution of India में दिए हुए हैं वो सभी constitutional rights होंगे. For example, right to vote as well. Right to vote is also a constitutional right, although this is not a fundamental
राइट। तो मेन डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट में यही है कि जो राइट्स पार्ट 3 में दिए हुए हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, और जो राइट्स पार्ट 3 के अलावा किसी और प्रोविजन में दिए होंगे उनको हम फंडामेंटल राइट्स नहीं बोलेंगे, बल्कि उनको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। फाइन। सो राइट टू प्रॉपर्टी, और फॉर दैट मैटर right to vote, they both are rights under the Constitution of India। Constitution में specifically mentioned हैं ये दोनों rights, तो उनको हम बोलते हैं constitutional rights, क्योंकि Constitution में दिए हुए हैं ये, but they are not fundamental rights because they are not given place under the part 3। so fundamental rights सिर्फ वो constitutional rights हैं जो part 3 में दिए हुए हैं। fine। so fundamental rights are also constitutional rights and only, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिए हुए ही हैं, बट फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट सैक्रोसेंक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नाउ देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कैन यू नेम द 6 फंडामेंटल राइट्स? कौन कौन से हैं? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज राइट टू equality। These rights are given under article 14 to 18। so article 14 to 18 right to equality दिया है। then we have right to freedom, these right to freedom are given under article 19 to article 22 of the Constitution। then third fundamental right is right against exploitation, this is given under article 23 to 24 of the Constitution। the fourth fundamental right is right to freedom of religion, this is given under article 25 to 28 of the Constitution। the fifth fundamental right is cultural and educational rights, these rights are given under article 29 to article 30 of the Constitution, 29 and 30। then sixth constitutional fundamental right is, which was a fundamental right previously, sixth fundamental right जो शुरू में था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो था right to property, which has now been deleted by which amendment act? by 44th amendment act of 1978। ठीक है। पहले हमारे पास 6th fundamental right जो था वो right to property था, which was deleted from the fundamental rights list through the means of 44th amendment act, and which through this particular amendment act itself was made a constitutional right under article 300A of the Constitution। फाइन। सो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से मूव करके आर्टिकल 300A में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट जगह दी गई। फाइन। then but now we have only 6 fundamental rights। now the 6th and the last fundamental right is right to constitutional रेमेडीज़। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था उस टाइम ये 7th फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, सो नाउ वी हैव द 6th फंडामेंटल राइट एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। सो दीज आर द 6 fundamental rights that we have at present under the Constitution of India: right to equality, right to freedom, right against exploitation,
right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. So all these rights are given under part 3 of the constitution. The part 3 of constitution starts with article 12 and goes on up to article 35 of the constitution. So fundamental right, which is part 3 of the constitution, is given under articles 12 to article 35 of the constitution. Now a question arises as to against whom these fundamental rights can be enforced. The fundamental rights can be enforced only against the state actions. Fine. So the fundamental rights are not enforceable against the action of individuals. किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स नहीं करा सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मुझे इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, या फिर दिस पर्सन इज नॉट गिविंग मी द फ्रीडम टू रिलीजन, right? So these fundamental rights are applicable against the action of the state only. The state cannot infringe the fundamental rights of the citizens. Fine. So the fundamental rights are basically a restriction on the power of the state, that is the state is bound to act within the area of the fundamental rights of citizens, and it cannot go beyond the fundamental rights of citizens. Fine. Although there are few fundamental rights, for example right against untouchability and the right against exploitation, which are also applicable, enforceable even against the normal citizens, but the general view is that अगर आपके पास एग्जाम में भी आता है कि फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट एनफोर्सेबल हैं, तो ये एनफोर्सेबल है स्टेट एक्शन के अगेंस्ट, ना कि इंडिविजुअल एक्शन के अगेंस्ट. सो द जनरल व्यू और द जनरल रूल इज दैट the fundamental rights are enforceable only against the action of state, and they are not enforceable against the action of individuals or private persons. Fine. Now a question arises as to what this state is. ये state है कौन जिसके against ये fundamental rights enforceable होंगे. This particular definition of state is given under article 12 of the constitution, and article 12 has specifically stated that this definition of state given under article 12 of the constitution is applicable only to part 3 of the constitution, and applicable to any other part of the constitution only if specifically provided. For example, part 4 of the constitution also specifically provides that the definition of state given under article 12 of the constitution is also applicable to directive principles of state policy given under part 4 of the constitution. बट पार्ट 3 और पार्ट 4 के अलावा स्टेट की जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और पार्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगी. फाइन. सो ये बात ध्यान रखना कि स्टेट की जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी पे ही एप्लीकेबल होगी. Now let's have a look at the definition of state given under article 12 of the constitution. So article 12 provides with the definition of state, and it says in this part, which part? Part 3 of the constitution, unless the context otherwise requires, the state includes, so this is an inclusive definition, the state includes the government, government का मतलब है executive branch of the state, the government and the parliament of India, and the government and legislature of each of the states. देखो यहाँ पे स्टेट वर्ड 2 बार यूज हुआ है, ये है द स्टेट. इस स्टेट का मतलब है फंडामेंटल राइट्स में जिस स्टेट की बात की गई है, और ये जो स्टेट्स लिखा है ये है हमारे इंडिविजुअल स्टेट्स. फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब. उत्तर प्रदेश. ठीक है. तो आर्टिकल 12 क्या कहता है कि द स्टेट, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 में स्टेट
मेंशन होगा, स्टेट का मीनिंग हम क्या मानेंगे, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज within the territory of India or under the control of government of India. फाइन. सो यहाँ से हमें पहली बात तो ये सामने आती है कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होगा, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट. द थर्ड थिंग इज दैट द स्टेट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल लोकल अथॉरिटीज. लोकल अथॉरिटीज मीन्स पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज. And the fourth one says all other authorities, local or other authorities within the territory of India, which are within the territory of India, or if they are not within the territory of India, for example अगर वो किसी और country में established है, but if that particular authority is under the control of India, for example Indian embassy in the state of United Kingdom और United States of America. ठीक है, तो बेशक से इंडियन एम्बेसी इंडियन टेरिटरी में ही एस्टेब्लिश नहीं है, बट दिस इंडियन एम्बेसी एक्चुअली वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन अंडर आर्टिकल 12. देखो यहाँ पे ये तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि जो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, दे आर ऑल अ पार्ट अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ऑल्सो द लेजिस्लेचर दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 12 अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. तो एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट है वो जो भी काम करेगी उसको जो है फंडामेंटल राइट्स पे खरा उतरना पड़ेगा. एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर जितने भी लॉ बनाएगा उनको भी फंडामेंटल राइट्स को जो है इन्फ्रिंज नहीं उनसे भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता है. राइट. सो एग्जीक्यूटिव जितने भी काम करेगा या लेजिस्लेचर जितने भी काम करेगा वो सारे फंडामेंटल राइट्स के विद इन होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप कोई लॉ बनाते टाइम फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करो या फिर कोई लॉ इन्फोर्स करते टाइम या कोई ऑर्डिनेंस पास करते टाइम उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करो. फाइन. तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता स्टेट, वो चाहे एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो इंडियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर हो. फाइन. एट द सेम टाइम द रूल्स मेड बाय पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑल्सो हैव टू fulfill the requirements of fundamental rights. These local authorities also are included under the definition of state. ठीक है, तो ये तीनों तो काफ़ी हद तक क्लियर हैं कि सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर और पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अदर अथॉरिटीज़ पे आता है कि ये अदर अथॉरिटीज़ का मतलब क्या है जो स्टेट की डेफिनेशन में दिया हुआ है. So these other authorities given under Article 12 also has to be understood in consonance with the rest of the three authorities, that is the executive, legislature of state or central government or the local authorities. कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जिस ढंग से काम करते हैं उसी तरह की अगर कोई और अथॉरिटी है that is to be included under the definition of state under article 12 of the constitution. अब इस अदर अथॉरिटी जो है ये काफ़ी हद तक डिस्प्यूटेड फैक्ट रहा है हमेशा से ही और इसी कारण इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केस लॉज भी हमारे पास हैं. सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केसेस ऑन आर्टिकल 12 इज सोम प्रकाश रेखी versus Union of India. In this case, it was held by the Supreme Court of India
that India is a welfare state, और इंडियन स्टेट जो है बहुत सारे ऐसे काम भी करता है जो कोई प्राइवेट एंटिटी भी कर सकती है, राइट? सो हाउ डू वी रियली डिसाइड इफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी और अथॉरिटी इज टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 और नॉट? So in Som Prakash Rekhi versus Union of India, the Supreme Court of India held that even if the authority is not created by act, it must be included in the definition of state. फाइन. सो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के थ्रू ही बनी हो. अगर बिना लेजिस्लेशन के भी कोई अगर अथॉरिटी बनती है जिसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट केस ऑन आर्टिकल 12 इज चंद्रमोहन खन्ना versus NCERT. In this case, the main dispute was whether NCERT is to be included in the definition of state under Article 12 or not. In Chandramohan Khanna versus NCERT, the Supreme Court of India held that NCERT is not state under Article 12 of the Constitution, and the reason given by the Supreme Court of India for not holding NCERT under the definition of state under Article 12 of the Constitution is that the main function of NCERT is only to advise the government, and it is an autonomous body. That is, the government does not have any sort of control over NCERT's functions. Hence, NCERT is not included under the definition of state. तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि NCERT स्टेट है या नहीं है. तो चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT के केस में स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NCERT is not at all included under the definition of state. Then we have another very important case of Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology. In this case, it was held by the Supreme Court of India that CSIR is included under the definition of state under Article 12 of the Constitution, and the reason given by the Supreme Court of India was that as CSIR is an instrumentality of the state, hence it was held to be a state under Article 12 of the Constitution of India. This case becomes important also for the purpose that previously there was a case of Sabhajit Tiwari. In the case of Sabhajit Tiwari, it was held by the Supreme Court of India that CSIR is not a state. तो उसको ओवर रूल किया है प्रदीप कुमार बिस्वास के केस में. सो दिस केस ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट. सो CSIR is included under the definition of state under Article 12 of the Constitution. So this was the definition of state as given under Article 12 of the Constitution of India, and it has evolved over a period of time through the means of various judgments of the Supreme Court of India. Now coming to next aspect of the fundamental rights, a question arises whether the fundamental rights can be
overruled by the particular legislation made by the स्टेट गवर्नमेंट और दी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ऐसा कोई लॉ बन सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा? और अगर ऐसा कोई लॉ नहीं बन सकता है तो क्या रेमेडी होगी या क्या प्रोविज़न होगा जिससे हम उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकें? बेसिकली कहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स को? आर्टिकल 13 of the Constitution of India provides with this particular provision that says that if a particular legislation or law made by the parliament or the state government is inconsistent or in contravention to any of the fundamental rights given under part 3 of the Constitution of India, in that case that particular law is invalid, right, or void. Fine. Although the power of judicial review is not specifically given under Article 13 of the Constitution, but the mere reading of Article 13 provides that if any law made by the parliament or state legislation is inconsistent with any of the fundamental rights, that is a void law. Now who would declare that a void law? कौन बताएगा हमें कि वो law void है या नहीं है? Obviously the judiciary. Fine. So judicial review की power article 13 में ही inherent है. Fine. Also article 13 of the constitution provides as to what a law is. Law में क्या क्या include होगा वो भी हमें article 13 ही बताता है. So let's have a look at article 13 of the Constitution of India. Article 13 says laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights, and it says all laws in force in India, in the territory of India, immediately before the commencement of this constitution. देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था हमारे देश में, उससे पहले भी हमारे देश में कई सारे लॉज एप्लीकेबल थे. फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट. तो बहुत सारे लॉ हमारे देश में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे. इनके अलावा और भी बहुत सारे लॉज थे जो उस टाइम से ही चले आ रहे थे, प्री इंडिपेंडेंस टाइम से. फाइन. सो clause 1 of the article 13 provides with pre-constitutional laws, and it says that all the laws which were in force in the territory of India immediately before the commencement of the constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. So clause 1 of article 13 talks about pre-constitutional laws, and it says that all the pre-existing or pre-constitutional laws which are inconsistent with the part 3 of the constitution, मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज थे, अगर उनमें से कोई भी लॉ या लॉ का कोई भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, जहाँ तक वो इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड माना जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंट माना जाएगा. फाइन. सो जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे उनको भी अब कॉन्स्टिट्यूशन कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा. ठीक है. तो बेशक से वो पहले से ही एप्लीकेबल थे इंडिया में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद अगर उनमें से कोई भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है विद द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट पर्टिकुलर पार्ट शैल बी ट्रीटेड एज void. Now clause 2 of article 13 talks about post constitutional laws, जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद बने, and it says that the state, what is the state? This is given under article 12. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of contravention, be void.
see this clause 2 of article 13 of the constitution has specifically stated that the state shall not make any law against the constitutional or fundamental rights of a citizen, and any law made in contravention to fundamental rights of citizen the people shall be void to the extent of such contravention. ठीक है, तो कोई भी लॉ जो है इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन स्टेट जो है वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के इन कॉन्ट्रावेंशन में नहीं बना सकता है, और अगर इन कॉन्ट्रावेंशन में बना दिया तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 3 में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं। द फर्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि मान लो अगर कोई ऐसा लॉ है जिसका एक पार्ट तो परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, परफेक्टली वैलिड लॉ है, लेकिन अगर एक पार्ट उस लॉ का फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? इन दैट केस वी विल अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड वी विल सी इफ वी कैन सेपरेट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, और अगर उस पूरे एक्ट में से अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को हम अलग कर सकते हैं, सिवियर कर सकते हैं, in that case only that unconstitutional part has to be removed and this particular part which is perfectly constitutional will be made applicable। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो पूरे लॉ में हर एक आर्टिकल या हर एक सेक्शन में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है फॉर एग्जाम्पल, और इट इज़ नॉट रियली फिजिबल और इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में पूरे लॉ को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर केस बिकॉज इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाकी सारा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन दैट केस ओनली द अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट पूरा पूरा एप्लीकेबल होगा। एंड द सेकेंड डॉक्ट्रिन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। According to the doctrine of eclipse, if any law is inconsistent with any part of the fundamental rights, in that case, according to the doctrine of eclipse, that particular law does not need to be repealed or removed in complete. That particular act can be made applicable only to the extent that which is in consonance with the fundamental rights, और जो पार्ट उस एक्ट का फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि दैट विल be there in the moribund condition, that particular part which is in contravention of fundamental rights, that particular part will be eclipsed। eclipse क्या होता है बेसिकली, जिसको हम ग्रहण भी बोलते हैं, कि एक पार्ट दिखाई देता है, फॉर एग्जांपल अगर सन का है तो सन का एक पार्ट दिखाई देता है और दूसरा पार्ट दिखाई नहीं देता है, दैट इज़ डार्कन्ड। ठीक है, तो एक ऐसा कोई लॉ है मान लो जो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन में है, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स वो लॉ ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि वो लॉ
टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इक्लिप्स्ड हो जाएगा। फाइन। और जैसे ही मान लो वो फंडामेंटल राइट ही अगर हटा दिया जाए तो उस केस में इक्लिप्स्ड पार्ट भी इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा लॉ है जो आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज कर रहा है, इन दैट केस आर्टिकल 19 इज एप्लीकेबल ओनली अगेंस्ट दी सिटीजन्स। सिर्फ सिटीजन्स को ही तो दिया हुआ है आर्टिकल 19 का फंडामेंटल राइट। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, that particular law will be eclipsed for the citizens but will be applicable against non-citizens. Fine. So this is the doctrine of eclipse. Now a question arises whether this doctrine of eclipse is applicable against the pre-constitutional law or even against the post-constitutional laws. So पहले ये माना जाता था कि doctrine of eclipse जो है वो सिर्फ pre-constitutional laws के ही ऊपर applicable है, but this stance was changed by the case of State of Gujarat versus Sri Ambika Mills. In this case, it was held by the Supreme Court of India that doctrine of eclipse is applicable to both pre-constitutional as well as post-constitutional laws. ठीक है, तो अब प्रेजेंट टेंस क्या है इस पर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स, दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज एप्लीकेबल टू प्री एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. नाउ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच इज द प्रोविजन ऑफ लॉ. लॉ हम किस पर्टिकुलर एक्ट को मानेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 13 कह रहा है कि वो सारे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रावेंशन या इनकंसिस्टेंसी में हैं वो वॉइड होंगे. लेकिन ये लॉ का मतलब क्या है, ये लॉ है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन ने बनाई है, या फिर कुछ और भी इसमें इंक्लूडेड है? सो द डेफिनेशन ऑफ लॉ इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13. So as per article 13 clause 3, law includes, so this is an inclusive definition, it includes any ordinance. अगर ordinance भी पास किया गया है, ordinance for example 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस पास करता है अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, तो वो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर भी पास करता है वो भी लॉ की डेफिनेशन में फॉल करेगा. और law includes order as well, any order given by the executive or bylaw. Even the bylaws made by the state will also fall under the definition of law. Or any rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. So law की definition में ये सारी चीज़ें included होंगी. लॉ का मतलब सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं होगा, बल्कि लॉ में ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज भी इंक्लूड किए जाएंगे. नाउ सब क्लोज बी सेज लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो लॉज इन फोर्स जो क्लोज 1 में बात की गई थी, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उसका क्या मतलब है? ये वो लॉज हैं जो लेजिस्लेचर या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले बनाए एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, और जिनको रिपील नहीं किया गया. नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरिया. बेशक से वो उस पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल है या नहीं, लेकिन अगर वो स्टेट किसी लेजिस्लेचर ने या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए थे और अगर रिपील नहीं हुए हैं तो वो लॉज भी लॉज इन फोर्स माने जाएंगे. फाइन. सो वाइल क्लोज 1 एंड क्लोज 2 ऑफ द आर्टिकल 13 provides with regard to judicial review, that is those laws which are inconsistent or in contravention to the fundamental rights shall be declared to be void. At the same time, clause 3 of article 13 provides with the definition of law and laws in force.
Now, another very important aspect of Article 13 is given under clause 4 of Article 13, and it says that nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. That means if any amendment has been made in the Constitution of India, that cannot be tested on the ground of inconstitutionality, on the ground of infringing the fundamental rights of citizens. Fine. So although this particular clause is one of the most controversial clauses, and now the judiciary has come up with a settled law that even if the executive or the legislature has made any law and it has caused any amendment to the constitution, that can be tested to the constitutionality of fundamental rights. So आर्टिकल 13 क्लोज 4 का जो मेन एक्ट है वो तो यही कहता है कि इस आर्टिकल में जो है ये जो आर्टिकल है 13 वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो नाउ कमिंग टू द मेन प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द राइट टू इक्वालिटी. द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन फ्रॉम Article 14 to Article 18 of the Constitution of India. Now, the first and most important article under the fundamental rights is Article 14 of the Constitution. Article 14 of the Constitution provides with the provision of equality before law. So Article 14 is basically the main right to equality, and Article 14 says that the state किसके ऊपर एप्लीकेबल है? स्टेट के ऊपर. और स्टेट कौन है? जो आर्टिकल 12 में दिया है. So Article 14 says that the state shall not deny to any person. Any person का क्या मतलब है? सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो. सो आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 इज गिवन टू एनी पर्सन even if the person is natural or only legal, or if the person is citizen or non citizen. So हर एक person को आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है. फाइन. So the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. तो आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दो तरह की इक्वालिटी की बात करता है. पहली तो ये बात बोलता है, पहली बात तो आर्टिकल 14 में जो ध्यान रखने की वो है, ये है कि आर्टिकल 14 बेसिकली पुट्स अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ स्टेट, कि स्टेट को क्या नहीं करना है. एक तरह से नेगेटिव सेंस में आर्टिकल 14 दिया हुआ है, ना कि पॉजिटिव सेंस में. तो स्टेट को क्या नहीं करना है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, बी इट सिटीजन और नॉन सिटीजन और एनी लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन. द स्टेट शैल नॉट डिनाई द फर्स्टली इक्वालिटी बिफोर लॉ, and the second thing equal protection of the laws. So state क्या डिनाई नहीं कर सकता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दोनों का एक डिफरेंट मीनिंग बनता है. इक्वालिटी बिफोर लॉ जो फ्रेज है मेनली वो हमने लिया है ब्रिटिश ओरिजिन से. फाइनली, सो दिस इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज बीइंग टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है कि चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो,
एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, लेजिस्लेचर हो, नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, उसको इक्वली ट्रीट करना है, सबको समानता से ट्रीट करना है। मतलब चाहे कोई कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, कितना ही इन्फ्लुएंशियल हो, कितना ही नॉर्मल पर्सन हो, या फिर लेजिस्लेचर हो या नॉर्मल सिटीज़न हो, सबको हमें एक समान ट्रीट करना है। फाइन, सो दिस बेसिकली प्रोवाइड्स विद द राइट टू इक्वालिटी इन स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द टर्म्स। कोई कैसा भी हो, वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या नॉर्मल सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या नॉर्मल नॉन सिटीज़न भी हो, everyone has to be treated as equal before the law। ठीक है, तो कोई कितना ही समाज में उसकी कोई पोजीशन हो, कितना इन्फ्लुएंस हो, वो मैटर नहीं करेगा, सबको बराबर माना जाएगा। बट दिस फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज इज ऑफ समवॉट पॉजिटिव सेंस, as the phrase equal protection of laws actually recognizes that not all people are equal in the society। so अगर हम किसी अमीर को जो हर रोज़ के 1 करोड़ रुपीज़ अर्न कर रहा है और एक गरीब जो हर रोज़ के सिर्फ 10 रुपीज़ ही अर्न कर रहा है, अगर हम इन दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे तो स्ट्रिक्ट सेंस में तो हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वल ट्रीटमेंट ही कहीं ना कहीं इन इक्वालिटी को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम इक्वली ट्रीट करेंगे, अगर सरकार दोनों को सेम बेनिफिट देगी, तो कहीं ना कहीं यही इनजस्टिस है, यही इन इक्वालिटी है। फाइन, सो जो कमज़ोर है हमारे समाज में, उसको जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उसको थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाएँ, ताकि वो भी बाकियों के बराबर आ सके। So this particular idea of treating the equals equally and treating unequals not equally is given under phrase equal protection of laws। हमारा मकसद सबको बराबर ट्रीट करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है जो कमज़ोर है उसको भी स्ट्रॉन्ग के बराबर लाया जा सके। तो हमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, ना कि सबको इक्वल ट्रीट करना है। ठीक है, तो सो दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 इज़ दैट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। किसी एक क्लास के लिए आप लॉ नहीं बना सकते हो, बट इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अब क्लास लेजिस्लेशन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? क्लास लेजिस्लेशन में हम एक क्लास ऑफ पर्सन्स को आर्बिट्ररीली या बिना दिमाग लगाए सेपरेट कर लेते हैं और उसके लिए अलग से लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास लेजिस्लेशन, दिस आर्बिट्ररी सेपरेशन ऑफ वन क्लास फ्रॉम अनदर इज नॉट परमिटेड अंडर द आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 14 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर एक सेट ऑफ पर्सन्स को यू कैन रीजनेबली क्लासीफाई आफ्टर अप्लाइंग योर माइंड, इफ यू कैन justify as to why this particular community of people deserves to be treated separately, only then you will be able to make separate laws for this particular group of persons। fine, so reasonable classification में एक सोचा समझा एक क्लासिफिकेशन होता है कि किस बेसिस पे आप उनको क्लासीफाई कर रहे हो, क्यों आप उनको अलग कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हिली एरियाज़ को सरकार ज़्यादा कम दामों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और अगर प्लेन एरियाज़ को जो है महंगे दामों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अब अगर यहाँ पे स्टेट ये जस्टिफाई कर पाए
कि जी हमने हिली एरियाज़ को ज़्यादा बेनिफिट इसलिए दिया है क्योंकि हिली एरिया के लोग उतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और उनको जो है स्टेट की हेल्प की ज़रूरत है, और इसी वजह से हमने उनको अलग से क्लासिफाई किया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। इन दैट केस द रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ हिली एरियाज कैन बी परमिटेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 14 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, but it permits reasonable classification. Now, although Article 14 of the Constitution provides with the right to equality to all the citizens as well as non-citizens, but there are certain exceptions to this article. For example, exceptions क्या हैं आर्टिकल 14 के? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उनको बाकी सिटीजन्स के इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एंड नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर टर्म। Also, if any civil proceeding has to be started against the president or governor, at least 2 months notice has to be given to them. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14. Similarly, there are certain parliamentary privileges given under Article 105 of the Constitution, which provides some benefits to the parliamentary members, that is they can speak anything on the floor of the house and nobody can take action against them. Also, the foreign sovereigns, अगर दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, if they visit India, they shall also be treated differently. They are not subject to right to equality under Article 14. And the foreign ambassadors as well, they get immunity from the courts in India. Fine. So all these are exceptions to Article 14 of the Constitution. So Article 14 is the main provision with regard to right to equality. Now Article 15 and 16 of the Constitution can be said to be two exceptions to Article 14 of the Constitution, which provides with regard to special treatment of certain class of persons. So as per Article 15, the general provision of Article 15 says that the state shall not discriminate against any citizen. So ये सिर्फ citizens के ऊपर ही applicable है. Non citizens cannot claim this fundamental right. हालांकि आर्टिकल 14 में नॉन सिटीजन्स भी राइट टू इक्वालिटी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 15 में जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है. सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम. सो आर्टिकल 15 सीधा सीधा क्या कहता है कि स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है. किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. RRCSP, दिस इज द कीवर्ड RRCSP. RRCSP के ऊपर जो है कोई भी स्टेट सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन हियर इज दैट द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड, ओनली ऑन एनी ऑफ दीज ग्राउंड्स. सिर्फ इन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, लेकिन मान लो इन ग्राउंड्स के साथ कोई और एक ग्राउंड अटैच कर दिया जो इन 5 में नहीं है. In that case, the state can discriminate between the citizens. So सिर्फ और सिर्फ religion या सिर्फ और सिर्फ race या सिर्फ और सिर्फ caste या सिर्फ और सिर्फ sex या सिर्फ और सिर्फ
प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा, इन 5 ग्राउंड्स के अलावा मान लो कोई और एक ग्राउंड अटैच कर दिया स्टेट ने, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन सिर्फ रिलीजन के बेस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या फिर सिर्फ रेस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, या कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हो, या सिर्फ सेक्स के ऊपर कि ये महिला है या ये पुरुष है, या फिर सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हो, वो नहीं चलेगा। सो स्टेट जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। सो कितने ग्राउंड दिए हुए हैं आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन के? 5, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फाइन। नाउ clause 2 provides an extension of clause 1 itself, and it says, so clause 1 सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? स्टेट के ऊपर, नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बट clause 2 says that no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, places of public entertainment or use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general पब्लिक। सो अगर कोई ऐसा प्लेस है जो या तो स्टेट फंड से कम्प्लीटली फंडेड है, या फिर जो जनरल पब्लिक के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे जनरल पब्लिक को आना अलाउ किया गया, फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल्स, तो वहाँ पे कोई भी जनरल पब्लिक जा सकती है। तो मान लो अगर सिनेमा हॉल किसी प्राइवेट पर्सन का भी है, और अगर वो ये कहने लग जाए कि मैं तो सिर्फ इस कास्ट वाले लोगों को ही अपने सिनेमा हॉल में आने दूंगा, दैट विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ देयर आर्टिकल 15। देखो आर्टिकल 15 क्लोज 2 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो नॉर्मल सिटीजन के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी डिस्क्रिमिनेट करता है किसी दूसरे को अपने किसी ऐसे प्लेस में आने के लिए जो जनरल पब्लिक के लिए खुला हुआ है, सो जो सबके लिए आप अलाउ कर रहे हो, तो किसी एक ग्राउंड पे आप किसी बंदे को जो है आने से मना नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं तो सिर्फ इस रिलीजन के लोगों को ही आने दूंगा, या फिर सिर्फ इसी कास्ट के लोगों को अपने होटल में या रेस्टोरेंट में आने दूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लोज 1 सिर्फ स्टेट के एक्ट के लिए एप्लीकेबल है, बट आर्टिकल 15 क्लोज 2 नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। फाइन। Now clause 3 of article 15 provides with another very important provision, according to which this is also an exception to article 15 itself. It says nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. So किस किस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है सरकार? women and children. सो आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ विमेन के लिए ही ये काम क्यों किया गया है, लड़कों के लिए क्यों नहीं किया गया, सिर्फ विमेन कॉलेज ही क्यों खोला है, ऑल बॉयज़ कॉलेज क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लोज 3 स्टेट को एक पावर देता है कि आप सिर्फ विमेन या सिर्फ चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, एंड दैट विल नॉट बी अ वायलेशन ऑफ देयर राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 15। ठीक है, तो दिस particular article 15 clause 3 empowers the state to make special provision for whom? For women and children. so सिर्फ दो ही तरह की एंटिटीज दी हुई है, women and children, इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन जो है स्टेट बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल women's reservation in local bodies, that is perfectly constitutional because article 15 clause 3 itself empowers the state to make special provision for women। लेकिन अगर यहाँ पे men के सिर्फ men के लिए reservation दी जाए, that will be a violation of article 15 clause 1। लेकिन क्योंकि article 15 clause 3 स्पेशली स्टेट को पावर दे रहा है कि आप women and children के लिए special provision बना सकते हो,
दैट मीन्स अगर कोई विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है स्टेट, दैट विल नॉट बी अ वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स. नाउ क्लोज 4 ऑफ Article 15 is another exception to Article 15(1). It also provides with the power to the state to make special provision for socially and educationally backward classes, and it says that nothing in this article or in clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or scheduled caste or scheduled tribes. So जहाँ आर्टिकल 15 क्लोज 3 वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहा था, वहीं पे आर्टिकल 15 क्लोज 4 भी स्टेट को पावर दे रहा है कि आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC एंड SC शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो. और बेशक से वहाँ पे सिर्फ एक कास्ट बेसिस पे भी अगर आपने कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया है, दैट विल नॉट बी अ वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ अदर सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 15. फाइन. सो दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑल्सो प्रोवाइड्स विद द पावर टू द स्टेट. देखो यहाँ पे ये जो दोनों प्रोविजन अगर आप देखोगे, आर्टिकल 15 क्लोज 3 और आर्टिकल 15 क्लोज 4, दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स. ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है. तो कोई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आके ये नहीं बोल सकती है कि आप हमें रिजर्वेशन दो. सरकार को आके ये नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये पावर सिर्फ सरकार को दी हुई है. दिस इज़ एन एम्पावरिंग और इनेबलिंग प्रोविजन दैट इनेबल्स द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर women, children, SEBC और SC और ST. This provision does not give any right to these class of people. इनके पास कोई fundamental right नहीं है special provision claim करने का. These are only the enabling provisions that empowers the state to make a special provision for them. और अगर state ने कोई special provision बना दिए हैं, then उस केस में आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा. नाउ क्लोज 5 सेज दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लोज G ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens or for scheduled caste or scheduled tribes insofar as such provision relate to their admission to educational institutions. सो आर्टिकल 15 क्लोज 5 क्या कहता है कि स्टेट जो है वो SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SCs एंड STs के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए भी स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है. और यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है दैट दिस इज़ एप्लीकेबल इवन इंक्लूडिंग टू दी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो बेशक से वो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज भी हो, वहाँ पे भी सरकार या जो स्टेट है वो SEBC, SC या ST के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है कि आप इतने परसेंट चिल्ड्रन को जो है रिजर्वेशन दो. फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट वाज मेड इन द ईयर 2005 थ्रू द मीन्स ऑफ 93rd अमेंडमेंट एक्ट. 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 15 क्लोज 5 जो है वो ऐड किया गया था. ठीक है, इसके थ्रू ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस आई थी. फाइन. और वो भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी, वेदर दे आर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट. सो बेशक से वो स्टेट फंड से भी उनका कोई लेना देना नहीं है, कम्प्लीटली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होगा, उसको भी इन SEBC, SC और ST क्लास ऑफ पर्सनस को रिजर्वेशन देनी पड़ेगी एज पर दिस 93rd अमेंडमेंट एक्ट दैट एडेड आर्टिकल 15 क्लोज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ क्लोज 6 which was added in the year, this is the most recent amendment under article 15. This is 103rd amendment of the constitution which was made in the year 2019. ठीक है, तो ये काफ़ी नई एक अमेंडमेंट है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाती है. सो दिस इज़
103rd अमेंडमेंट। अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? कैन यू टेल मी? गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल्सो टेल मी द लेटेस्ट 5 अमेंडमेंट्स मेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट 5 अमेंडमेंट्स कौन से हुए हैं और टोटल अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं अब तक, ये आप फाइंड आउट करें आंसर। सो दिस वॉज एडेड इन द ईयर 2019 बाय द मीन्स ऑफ 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शंस, EBC या EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो हमेशा हम बोलते रहते थे कि कास्ट बेस पे या रिलीजन बेस पे ही रिजर्वेशन क्यों हो। ये जो रिजर्वेशन है ये तो ये देख के होनी चाहिए कि कौन कितना गरीब है। तो सरकार ने जो है आर्टिकल 15 क्लोज 6 में ये प्रोविज़न भी ले आए जिससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दी गई। फाइन। सो आर्टिकल 15 क्लोज 6, ध्यान रखना ये आर्टिकल, ये क्योंकि लेटेस्ट एडिशन है तो ये आएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये कब ऐड हुआ है? 2019 में। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? 103rd अमेंडमेंट एक्ट। फाइन। सो डू रिमेंबर दिस वन। Now what does article 15 clause 6 says? It says that nothing in this article or subsection G of clause 1 of article 19 or clause 2 of article 19, so constitution में कहीं पे कुछ भी दिया हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ उस in that case the state, nothing in the constitution of India shall prevent the state from making any special provision for the advancement of economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5. So clause 4 and 5 में जो classes mentioned है उनके अलावा किसी भी economically weaker section के लिए state जो है special provision बना सकता है और constitution का कोई भी part उसको नहीं रोक सकता है। Now sub clause B says that any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clauses 4 and 5 insofar as such special provision relate to their institution admission to educational institutions including private education institutions whether aided or unaided other than the minority education institutions referred to in clause 1 of article 30, which in the case of reservation would be in addition to the existing reservations. Fine. So clause B merely says that these economically weaker sections shall also be provided reservation to the educational institutions as well, even to the private educational institutions. Fine. But these class of people cannot be provided reservation in the educational institutions of minorities given under article 30 of the constitution. So minority जो हैं जिनके राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 29 एंड 30 में, उनके ऊपर जो है ये रिजर्वेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, उनसे हम नहीं बोल सकते हैं कि आप रिजर्वेशन दो। अपार्ट फ्रॉम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, all other institutions, be it the state institutions or private institutions, everyone has to provide reservation to these class of people, that is SCBC, socially and educationally backward classes. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड का तो अभी आया प्रोविज़न, इससे पहले हमारे देश में जो आर्टिकल 15 में जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न था या स्पेशल ट्रीटमेंट का प्रोविज़न था वो सिर्फ और सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ही मिल सकता था। ठीक है, तो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस वाज नॉट एट ऑल रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइन। और उसके अलावा एससीज एंड एसटीज। ठीक है, तो ओबीसी जो ऐड हुए हैं बाद में, ओबीसी जो रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है, दिस वाज स्टार्टेड अंडर दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। Now explanation to article 15 says that for the purposes of this article and article 16, economically weaker sections shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. So economically weaker section कौन होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट नोटिफाई करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है,
फिलहाल ये किसके ऊपर छोड़ दिया है, स्टेट के ऊपर ही छोड़ दिया है कि आप टाइम टू टाइम डिसाइड करो कि किसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मान सकते हैं. So these were the main provisions from Article 12 to Article 15 of the Constitution of India. The cases with regard to Article 15 we will discuss in the next class, but before that let's have a look at some of the MCQs from Article 12 to Article 15 of the Constitution of India. The first question is, which one of the following does not fall within the meaning of state under Article 12 of the Indian Constitution? इनमें से कौन सा स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट, ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. सो द आंसर हियर इज ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन. दिस डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. देखो स्टेट की डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया कि एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव, legislature are part of the state under the definition of state given under Article 12. लेकिन judiciary is not included under the definition of state given under Article 12 of the Constitution. So any act of the judiciary cannot be subject to fundamental rights of the सिटीजन. सो अगर जुडिशरी कोई जजमेंट पास करती है तो आप उसको इस ग्राउंड पर नहीं चैलेंज कर सकते हो कि वो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रही है. फाइन. सो ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के ऊपर ही एप्लीकेबल है. जुडिशरी इज नॉट एट ऑल इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The next question is, which one of the following is not covered under state of Article 12 of the Constitution? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना और अदिति. जो भी देवी देवता हैं दे आर नॉट एट ऑल इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. देखो जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दे आर टू बी इंक्लूडेड अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट. The next question is, under which of the following articles laws inconsistent or abridging fundamental rights are declared void? किस आर्टिकल में जो फंडामेंटल राइट्स को इनकन्सिस्टेंट या एब्रिजिंग हैं उनको, उन लॉज को वॉइड करार कर दिया जाएगा? मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात कर रही है. गिवन अंडर आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 11 और आर्टिकल 21. So this is given under Article 13 of the Constitution. According to the Constitution of India, pre-constitutional laws inconsistent with the fundamental rights are void, voidable, required to be examined by courts, or none of the above. So as per Article 13 of the Constitution of India, any pre-constitutional law inconsistent with the fundamental rights are void. The next case is, the Supreme Court of India formulated the doctrine of eclipse in the case of Bhikaji Narayan Dhakras versus State of Madhya Pradesh, Bashesh Rath versus Income Tax Commissioner, State of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar और मेनका गांधी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया. किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स फॉर्मुलेट की गई थी? It was formulated in the case of Bhikaji Narayan Dhakras versus State of Madhya Pradesh. Fine. और इसके बाद State of Gujarat versus अंबिका मिल्स के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को कहा गया है कि दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ प्री एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, but it was formulated in the case of Bhikaji Narayan Dhakras versus State of Madhya Pradesh. The next question is, which of the following articles of Indian Constitution provides for power of judicial review of legislative action? Article 13, Article 17, Article 18 or Article 245. So which article of the Constitution provides with the provision of judicial review of legislative actions? This is given under Article
13 of the Constitution. Article 14 does not encompass equality before law, equal protection of laws, protection against arbitrary action, or protection of life and liberty. So Article 14 does encompass equality before law, equal protection of laws, ये दोनों तो specifically mentioned है. It also encompasses protection against arbitrary action, because in the case of E.P. Royappa, it was held that equality is antithesis to arbitrariness. So कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन भी आर्टिकल 14 में ही दिया हुआ है, ठीक है. तो आर्बिट्ररी एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो गिवन अंडर आर्टिकल 14 ओनली, बट द प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी इज नॉट गिवन अंडर आर्टिकल 14. The next question is, the equal protection of laws in Article 14 has been taken from British Constitution, American Constitution, Australian Constitution, or none of the above. So equal protection of laws has been taken from American Constitution, and equality before laws has been taken from British Constitution. The next question is, right to equality are in Article 14 to 18, 18 to 19, 20 to 21, or Article 32. So right to equality are given under Article 14 to 18. The next question is, in which case has the Supreme Court held that no reservation under OBC category can be made to creamy layer for admission in educational institutions. So this is what we are going to discuss in the next class. We will discuss the cases with regard to Article 15 in the next class, and the rest of the questions as well. So this is it for this lecture. In the next class I will start with the cases from Article 15 of the Constitution, and then we will move forward to Article 16 and the rest of the articles of the Constitution of India. Thank you.